cost that we have seen life cycle costing, then target costing, the standard costing, then value chain analysis, BPO. Such kind of techniques we had studied in second unit. Now, to this session, we have to go for activity-based costing. Now, we have seen in various cost techniques how to reduce the cost of product as well as how to control the cost, how to manage the cost, which we have studied. Okay. Now, activity based costing is also one of the cost reduction technique. So this is also one of the cost reduction technique where accurate allocation of cost we are going to do. Accurate allocation of cost, because see, we have two types of cost. One is the direct cost and one is indirect cost. Direct cost means what? This is the cost of direct material, direct labor and direct expenses that we had already seen. And indirect cost means what? Such some cost which is also called as a supportive cost. For example, maintenance. Okay, so maintenance is the supporting department, accounting is supporting department, then sales, promotion, advertisement is the supporting department. Getting this? Now this cost of accounting department, inspection department, R&D department. Okay, now we have to allocate this cost to product. For example, we are manufacturing one product. For example, we have two lines. For example, we have two lines. One line is of we are preparing mobiles along with charger. One line, we have two products. One is the mobile I am producing, and along with this I am producing charger as well. Getting this? Now accounting department is common department who is taking care of expenses of mobiles and expenses of charger, as well as inspection department is there who is taking care of, who is making the inspection of mobiles as well as inspection of charger, as well as selling and distribution or advertisement department is there who is also taking care of mobiles as well as charger. Now whatever direct material, direct labor and direct expenses of mobiles, we will allocate directly towards the mobile. Whatever expenses of direct material, direct labor and direct expenses, we will directly allocate towards the charger. अलग अलग हम लोग करेंगे, लेकिन जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, कौन से कॉमन एक्सपेंसेस है? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाला दोनों डिपार्टमेंट के काम कर रहा है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाला दोनों प्रोडक्ट चेक कर रहा है, उसके बाद वी हैव लेबर्स, सुपरवाइजर्स, then advertisement department, inspection department, they are working for both the products because we have multiple lines. Getting this? I am manufacturing mobile as well as charger, as well as along with I would have another line of battery as well. Getting this? Or for example, headphone I'm manufacturing. At that time, if I would have various departments, supportive departments, and they are common in all the products, at that time how to allocate the expenses of these supportive departments to these main lines, that is important, that we have to study under activity based costing. Getting this? Because the existence of this supportive department is for the to provide the services to the main lines. अगर मैंने मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया, अगर मैंने चार्जर और मोबाइल चार्जर और हेडफोन का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया, at that time there is no existence to maintenance department ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का नो यूज रहेगा. गेटिंग दिस? means what? These departments have a supportive role in manufacturing system. Without this department can I work? No. Getting this? अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मैंने बोला कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मशीनरी बंद पड़ गया तो who will make the maintenance of this machinery? Because these are the supportive departments, these are also required. Okay,
तो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि ये जो सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स है उसके कॉस्टिंग रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट लाइन को कैसे अलोकेट करे, ये हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। गेटिंग दिस? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, अलोकेट कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस है, वो अलोकेट करते समय कुछ तो तरीका लगाना चाहिए, कुछ तो तरीका लगाना चाहिए। सो व्हाट क्राइटेरिया आई कैन यूज, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ड्राइवर। कौन सा क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे? मान लो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर ऑल दी ऑल द डिपार्टमेंट, मोबाइल के लिए भी यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद चार्जर के लिए यूज किया है, हेडफोन के लिए भी यूज किया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 300 रुपीज, क्या मैं इक्वली डिवाइड करूंगा क्या? 1000 रुपीज फॉर मोबाइल, 1000 रुपीज फॉर चार्जर एंड 1000 रुपीज फॉर हेडफोन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल के लिए टोटल 100 यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए, उसका 3000 रुपीज बिल आया, उसमें से 100 में से 50 यूनिट मोबाइल लाइन के लिए गए हैं मेरे, उसके बाद 30 यूनिट मेरे चार्जर के लिए गए और 20 यूनिट मेरे हेडफोन लाइन के लिए गए। तो अगर ये मेरा बाइफर्गेशन यूनिट कॉस्ट का है, तो क्या कैन आई डिस्ट्रीब्यूट इक्वली? नो, दे विल नॉट एग्री। तो मोबाइल वाला लाइन के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, उसके कुछ एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग किसके ऊपर डाल रहे हैं, चार्जर लाइन के लिए और हेडफोन लाइन के लिए डाल रहे हैं। बट चार्जर लाइन का हेड और आपका हेडफोन लाइन जो चलाने वाला हेड है, रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट वाला, वो क्या बोलेगा, दिस विल बी नॉट अलाउड, मैं ये बियर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं किया ना। I have used only 30 units. Why I should pay the expenses of electricity which has been utilized by mobile? Getting this? So एक बार दो बार ये पॉसिबल है, लेकिन बार बार अगर हम लोगों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया तो they will not accept. They will not accept. That's why I have to use proper cost allocation techniques. I have to use proper cost allocation technique. So there are various methods to distribute the your overheads. Overhead यानी indirect all expenses, material का cost, indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses को हम लोग क्या बोलते हैं, overheads बोलते हैं। अभी ये overhead respective department को allocate करने के लिए, उसके नाम पे डालने के लिए various techniques are there. Getting this? So there are one of the traditional techniques are there as well as some modern techniques are there. लेकिन ट्रेडिशनल टेक्निक में भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लिमिटेशंस है, इसलिए नाउ देयर इज नीड टू यूज सम मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, दैट इज नथिंग बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दिस इज द मॉडिफाइड और मॉडर्न एंड मोर एक्यूरेट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। गेटिंग दिस? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? मोर एक्यूरेट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक where we should allocate expenses of supportive departments, service departments once again to the productive department, to the production line. So this is about the syllabus. So in activity based costing, what we are going to understand, we are going to understand purpose, concept, benefits, stages of allocation, relevance of ABC in decision making, its application in budgeting, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या है, एबीसी कॉस्टिंग क्या है, then comparative analysis between these two methods and applications of this ABC that we have to study over it. Okay, now look at this slide, then we will just try to understand the concept of costing techniques. Can you see this slide, please? Tell me. Yes, sir. Now just see, I have taken one example. Ram, Sham, Suraj and Nitin, these are the friends. और ये एक दिन होटल को जाते हैं, ओके।
These are very close friends, and they went to hotel one day. So as per their requirement, they have placed order. राम ने चाय ऑर्डर की, श्याम ने वेज मराठा का ऑर्डर किया, सूरज ने पोहा ऑर्डर किया, और नितिन ने नॉन वेज ऑर्डर किया. तो जो टी उसी एक ही होटल में उसने ऑर्डर दे दिया है, एक ही होटल में बैठ के, और जो टी का वैल्यू राम का कॉस्टिंग आया ₹20, शाम का वेज मराठा का ऑर्डर आया, कॉस्टिंग आया 200, सूरज ने पोहा ऑर्डर किया, उसका वैल्यू आ गया ₹300, एंड नितिन ने 900 नॉन वेज ऑर्डर की थी, उसकी वैल्यू आ गई ₹400. नाउ व्हाट इज द एक्चुअल बिल when they when they when they went to place the to pay the bill, at that time total bill was ₹650. ओके. अभी ये ₹650 हम लोग ये चार एक दूसरे में और आपस में कैसे बांट लेंगे, क्या कर सकते हैं ये? तो दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो उन्होंने खाया है उसका कॉस्ट है, कितना आया? ₹650. तो कैन वी allocate this amount? तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? कैन वी allocate this amount equally? अगर इक्वली किया तो ₹160 पर हेड आएगा. Getting this? 650 divided by 4 members are there. So 650 divided by 4 is equal to, it is amount to ₹160. Okay. तो बिल कितना है? राम का बिल कितना है? एक्चुअली राम ने क्या किया है? चाय पी है, उसके बिल कितना है? ₹20. अभी राम को कितना देना पड़ रहा है? इक्वली डिवाइड किया तो ₹160 पर मेंबर. तो राम ने एक ऑर्डर किया है ₹20 का, और उसको कितना इक्वली डिवाइड किया तो ₹160. इसका मतलब कितना राम ज्यादा पे कर रहा है? दैट इज ₹140. गेटिंग दिस? नाउ सेकंड थिंग देखो, ऑर्डर श्याम ने कितना किया है? ₹200 का. अगर उसको पर हेड कंट्रीब्यूशन इक्वली डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 160. तो किसका फायदा है यहाँ? उसका कॉस्टिंग 200 है और उसको कंट्रीब्यूशन आ रहा है ₹160. इसका मतलब क्या हो रहा है? ही इज इन प्रॉफिट ऑफ ₹40. देन गो टू द सूरज. सूरज ने ऑर्डर दिया ₹30 का, अगर और यहाँ पे पर हेड कंट्रीब्यूशन आ रहा है ₹160. मीन्स व्हाट? इस कितना घाटा हुआ उसका? ₹130 लॉस. गो टू द नितिन. उसने ऑर्डर दिया 400 का और उसको कॉस्टिंग आ रहा है ₹160. यानी कितना प्रॉफिट में आ रहा है? ₹140. मीन्स इफ द एक्सपेंसेस, if the direct material cost, if the bill is equally divided, that time per head contribution is ₹160. So if they pay, if both the parties, if all four friends agreed, if all friends agreed to equal contribution, at that time Ram and Suraj will be in loss and Shyam and Nitin will be in profit. Okay, so if I allocate these expenses in this way, at that time it will be injustice in case of Ram and Suraj, because उन्होंने जितना खाया नहीं, उससे ही भी उसको ज्यादा बिल आया. मान लो अगर ये एक टाइम होटल में गए तो ये पॉसिबल हो सकता है. दे कैन ऑल्सो एग्री, राम एंड सूरज कैन ऑल्सो एग्री, चलो भाई एक दिन एक टाइम का है तो एक, चलो हम लोग बियर करते. लेकिन अगर ये लोग हर रोज होटल जाते हैं, हर रोज वो होटल जाते हैं और हर रोज उनको इतना ही बिल आता है, तो कैन इज इट पॉसिबल राम एंड सूरज विल एग्री एवरी डे? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? No, sir. क्यों? Because every day they cannot pay much, no? यस, एग्जैक्टली. वही होता है ऑर्गेनाइजेशन में. ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. ठीक है, तो राम, श्याम, सूरज एंड नितिन, लेट अस से these are the departmental heads or these are the product line heads. वो क्या बोलेंगे? मैंने जितना मेरा कॉस्टिंग नहीं आया उतने से ज्यादा आप लोग मेरे ऊपर डाल रहे हैं. I will close down my units and I will not work for this.
this. Getting this? So Ram and Suraj will not agree for this. This is beneficial to Shyam and Nitin, but Ram and Suraj will not agree. वो हम बोलोगे हम लोग हमारा मटेरियल का देखेंगे, हमको ये नहीं चाहिए. Getting this? अगर एक टाइम का होता है तो वो एग्री करेंगे, लेकिन हर रोज वही होता है उनके साथ तो दे विल नॉट एग्री. वो क्या बोलेंगे, जितना भी मेरा कॉस्ट आया है उतना ही मैं पे करूंगा, अदरवाइज आई विल गो अलोन, आई विल नॉट कम विथ यू. डिपार्टमेंट क्या बोलेंगे, मेरा जितना कॉस्ट है उतना ही अलोकेट करो. तो हम लोग क्या करेंगे, चलो भाई अगर एक दिन का है तो इक्वली डिवाइड करेंगे, अगर हर रोज का है तो मैं क्या बोलूंगा, on the basis of material which I have used, I will pay only that much amount. राम क्या बोलेगा, मैंने जितना भी मटेरियल अलोकेट किया है उतना सिर्फ मेरे ऊपर मटेरियल का खर्चा लगाओ. मेरा टी का बिल कितना है 20 रुपीज, उतना ही मुझे लगाओ. That is called as a direct material cost, direct cost. That is your direct cost. So direct cost consists of direct material, direct labor और direct expenses. ये सब कुछ राम के ऊपर जितना खर्चा किया उतना ही उसको अलोकेट करेगा. एंड प्रोबेबली राम विल एग्री फॉर इट, श्याम विल आल्सो एग्री एंड सूरज विल आल्सो एग्री, क्योंकि उन्होंने ज्यादा खाया है तो उसको ज्यादा बिल देना ही पड़ेगा. गेटिंग दिस? सो इन दिस वे वी कैन मेक द अलोकेशन. तो अलोकेशन करते समय हम लोग क्या करेंगे, किसने कितना खाया है और किसने क्या ऑर्डर दिया है. ऑर्डर इज माय कॉस्ट ड्राइवर. तो अलोकेट करते समय मैं क्या करूंगा, ऑर्डर क्या है हर एक का. गेटिंग दिस? तो ऑर्डर के हिसाब से मैं कॉस्ट अलोकेट करूंगा. जिसने ऑर्डर बड़ा दिया है उसको ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, जिसका ऑर्डर छोटा है उसको छोटा कॉस्टिंग देना पड़ेगा. सो ये जो ऑर्डर जो पैरामीटर हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर. और कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है वो हम अलोकेट करेंगे. Getting this? So this is something about traditional costing or the cost allocation. Now see here, तो ये तो हुआ कि जिन्होंने जितना खाया है, जो ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया और वो अलोकेट कॉस्ट 650 रुपीज का अलोकेशन किया. अब इन राम, श्याम, सूरज एंड नितिन 4 were sitting into AC hall. जितना टाइम राम बैठा उतना टाइम श्याम भी उतना ही टाइम बैठा, सूरज भी उतना ही टाइम बैठा और नितिन भी उतना ही टाइम वहां पे था. लेट अस से 30 मिनट्स एक जगह पे बैठ के, एक ही टेबल पे बैठ के, एसी रूम पे बैठ के उन्होंने क्या किया था, ऑर्डर दिया था. ओके, तो मैनेजर ने पहले ही बोला था अगर आप एसी रूम बुक करते हो, एसी टेबल बुक करेंगे तो 400 रुपीज ओवरहेड ज्यादा लगेंगे, अगर नॉन एसी रहेगा तो सिर्फ 650 आपका बिल रहेगा. तो ये चारों ने डिसाइड किया कि नहीं चलो हम लोग समर का सीजन है तो हम लोग एसी टेबल पे बैठते हैं. तो एसी टेबल के मैनेजर ने 100 रुपए और भी लगाए. दिस इज कॉल्ड एज ओवरहेड. इसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड, बिकॉज दिस इज द सपोर्टिव. क्या ये इंपॉर्टेंट था क्या, बिना एसी क्या ये नहीं खा सकते थे क्या, ये खा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऑर्डर दे दिया है. इन्होंने उनका कन्वीनियंस देख के उन्होंने क्या किया है, सपोर्टिव कुछ एडिशनल कॉस्ट उन्होंने बेयर की. दैट एडिशनल कॉस्ट इज कॉल्ड एज ओवरहेड. अभी देखो वैसे देखा तो राम, श्याम, सूरज एंड नितिन दे कम टू दैट AC hall at certain time and they 4 were quit at the same time. एक साथ आए और एक साथ गए. अभी ये 100 रुपीज का ओवरहेड है, तो पहले हम लोगों ने 650 तो डिस्ट्रीब्यूट किया. 650 कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि वो लोग मान नहीं जाएंगे. हर रोज का धंधा है उनका, हर रोज का आना जाना है, वो मान नहीं करेंगे. इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर क्या दिया है उसके हिसाब से अलोकेट किया. जिसका जितना एक्चुअल बिल है उसने उतना लिया. अभी पॉइंट आ गया कि एसी का बिल कौन देगा, मटेरियल का तो उन्होंने दिया, लेकिन एसी का 100 रुपीज कौन देगा. गेटिंग दिस? नाउ इन केस ऑफ दिस 100 rupees as a overhead, why it is called as overhead, it is not directly linked with your product. It is the common expenses, it is amount of common expenses which we have to allocate.
Now, while allocating common expenses, we have to also use certain areas, certain cost driver. क्या again can I divide this equally? अभी एसी के चार्जेस हम लोग इक्वली डिवाइड कर सकते हैं क्या? क्योंकि सारे लोग तो एक ही टाइम पे बैठे थे, एक ही टेबल पे बैठे थे, और जितना टाइम राम बैठा था उतना टाइम श्याम, सूरज और नितिन भी बैठा था. तो कैन वी डिस्ट्रीब्यूट दिस इक्वली? यस स्टूडेंट्स, Yes, sir. इट अभी देखिए, we can distribute it equally, or we have to use certain times, or we have to find again some cost drivers. Okay, मान लो अगर ये अलग अलग टाइम अलग अलग टेबल पे बैठे हैं, ओके, अलग अलग टेबल पे बैठे हैं, तो we have to use certain areas. Now for time being, if they are sitting at exactly, अगर उन्होंने हर एक का बेनिफिट सेम लिया है, एसी का अगर सब लोगों ने एग्जैक्ट बेनिफिट लिया है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली. गेटिंग दिस? बट उसके हिसाब से मान लो कि उसके ऑर्डर के हिसाब से अगर एसी का बिल लगाया रहेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो एट दैट टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल प्लेस दिस 100 रुपीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर. प्रॉपर एलोकेशन होना है. अभी 20 रुपए के ऑर्डर में मान लो 100 रुपीज का 100 रुपीज का टोटल कॉस्ट है. अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना आएगा एसी का बिल? 25 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए और 25 रुपए. गेटिंग दिस? अभी देखिए, नाउ 25 रुपीज पर हेड दे हैव टू पे. अगर एक दिन का है तो चलेगा, दे विल एग्री. लेकिन लुक एट द राम का टोटल कॉस्टिंग मटेरियल का है 20 रुपीज फॉर मटेरियल, एंड हाउ मच रुपीज दे आर पेइंग? 100 rupees. Means what? 25 rupees per head cost is AC. उसने जितना खाया है उससे ज्यादा उसका एसी का बिल है. Means what? Overhead cost is more than your material cost. Clear about this? In case of Suraj also, proportion of material is 30 rupees in case of Suraj, and proportion of indirect cost overhead is 25 rupees. It is far more than your material. Getting this? So in this case, probably Ram and Suraj will not accept this. वो बोलेगे कि नहीं चाहिए हमको. 20 रुपए का चाय मैं तो इधर खड़ा होके पी सकता है ना, वो एसी का क्या जरूरी है मेरे लिए? डोंट गिव मी एसी. वो बोलेगा. मैं वहां पे चाय पीने के लिए कितने टाइम लगते हैं? 5 मिनट या 2 मिनट. लेकिन नॉनवेज का खाना खाने के लिए आधा घंटा लगता है. मुझे एसी की उतना जरूरी नहीं है. व्हाई शुड आई पे दिस अमाउंट? I am completing my task within 2 minutes. चाय पीने के लिए 2 मिनट लगते हैं, तो मैं 30 मिनट्स जो नितिन एसी यूज कर रहा है उसका बिल मैं क्यों दूं? Try to understand this. So this happens actually in the organization. वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मैंने कितना मेरा कॉस्टिंग कितना है? 20 रुपया. पहले मैंने क्या किया? कॉस्ट ड्राइवर यूज किया मटेरियल यूज करने के लिए, मटेरियल अलोकेट करने के लिए. कौन सा ऑर्डर किसने दिया उसका देखा, और उसके हिसाब से मैंने अलोकेट किया 650 रुपीज. अभी एसी के जो चार्जेस है ना, आई कैन अलोकेट इक्वली. क्योंकि क्या है? क्योंकि उसका कॉस्टिंग 20 रुपया है राम का, और उसको एसी का बिल आ रहा है 25 रुपया. तो वो क्या बोलेगा? मेरे लिए ये परवड़ता नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये. बट दिस इज अ कॉमन एक्सपेंसेस, यू कांट डिनाई इट. वो बोलेगा कि अगर ये कॉमन एक्सपेंसेस है, अगर मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं, तो मेरा बिलिंग कितना है, मेरा बिल कितना है वो देखो और उसके हिसाब से लगाओ. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो इन स्पाइट ऑफ मेकिंग इक्वली डिवीजन, व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है उनकी? देखिए 650 रुपीज. तो 650 रुपीज में राम का कंट्रीब्यूशन कितना है? दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 650. कुछ तो प्रोपोर्शन आएगा, लेट अस से 0.3. देन श्याम का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल कॉस्टिंग में? 200 डिवाइडेड बाय 650. इट मे बी रिलेटेड टू राइट 15%, ओके, और 20%. then 30 divided by 650, again it may be 0.03%, like this.
and 400 divided by 650, it may be more than 60%. Getting this? So what I will do, I will calculate the percentage of cost, and on the basis of ये कितना आया 20 divided by 650, it may be related to 0.04% और 4%. तो 4% हम लोग 100 में से भी 4% उसको दे दूंगा, allocate करूंगा. 100 is the overhead cost, so at that time I will divide 20 divided by 650, ये कुछ तो proportion आएगा. Okay, can you just tell me the value of 20 divided by 650 कितना आता है? Yes students, can you calculate this? 20 divided by, ये देखिए मुझे क्या करना है, अभी ये 100 रुपीज, ये 100 रुपीज क्या करना है, मुझे अलोकेट करने हैं सारे के ऊपर. लेकिन क्या हो जाएगा, राम को अगर इक्वली डिवाइड किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, राम का कॉस्टिंग आ रहा है 25 रुपीज. कैसे 25 रुपीज आ रहा है, बिकॉज 100 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 25 पर रुपीज आ रहा है. लेकिन ये 25 ये बियर नहीं करेगा, क्योंकि उसका टोटल कॉस्टिंग ही 20 रुपया है, और वो चाय पीने के लिए 1 घंटा नहीं लगता, जो कि वो नॉनवेज खाने के लिए लगता है. वो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, तो 25 को वो एग्री नहीं होगा. गेटिंग दिस? 25 को एग्री नहीं होगा. वो क्या बोलेगा, मैंने कितना खर्चा किया है उतना ही मेरे ऊपर लगाओ ना. गेटिंग दिस? सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, ये 25 उसके लिए एग्री नहीं करेगा. एट दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द ओवरहेड एब्सॉर्प्शन. तो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, ये जो सारा जो दिख रहा है ना इधर, so what I will do, I will make the total of these 4 things. ये जो टोटल है आपको दिखता है कि ये स्लाइड? Yes students, please give me reply. This is some critical. Yes sir. अभी ये सारों का टोटल किया था, वो आया था 650 रुपीज. बराबर है टोटल बिलिंग. अभी मुझे क्या करना है, इंडिविजुअली एलोकेशन देखना है. कैसा एलोकेशन देखना है, 20 डिवाइडेड बाय 650 कितना आता है मुझे बोलो जरा, कैलकुलेशन करके मोबाइल पे. 20 डिवाइडेड बाय 650 कितना आता है कैलकुलेशन? 0.03. एक मिनट, 0.03. 0.031. Okay, so the way in which we have calculated ना, in the same manner I can calculate for this wage maratha as well. इसका बताओ, 200 divided by 650. 0.307. 0.307 ना? Yes sir. Means what, 0.30 I can write. Okay, in the same manner I can calculate it for this poha. Tell me 0.046. 0.04 ना? Yes sir. 0.04. और for this non-veg 0.61. 0.61 ना? Yes sir. Now what does it mean? टोटल जो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है उसका 3% राम का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, शाम का 30% होना चाहिए. टोटल 650 में से 30% एक्सपेंसेस राम के हैं, और सॉरी शाम के हैं. उसके बाद पोहा का बिल कितना होना चाहिए, सिर्फ 4%, और नॉनवेज का बिल है 61%. तो what I will do at the time of making the allocation of your overheads of rupees 100, what I will do, I will first calculate the overhead allocation cost proportion, और उसके हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. इसका मतलब अभी जो मेरा 100 रुपीज है, 100 का 3% यानी कितना आया, 3 रुपया. गेटिंग दिस? एसी का जो बिल मुझे अलोकेट करना है उसमें 100 का 0.3% इज हिज कॉस्ट ना.
तो 0.3 टोटल में 0.3% इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टी। तो 3% एसी का भी 3% बिल मैं राम के ऊपर लगाऊंगा, इसका मतलब ₹3 ओनली। गेटिंग दिस। अभी शाम का कंट्रीब्यूशन कितना है मटेरियल का? 200 रुपया। 200 रुपया यानी 650 का कितना परसेंटेज है? 30%। यानी 650 का 30% कितना आता है मुझे बताओ? सॉरी 650 का प्रोपोर्शन आया है 30%। तो 100 का 30% उसमें मैं राम ने पे करना चाहिए। इसका मतलब 30 रुपया किसने पेमेंट करना चाहिए? राम ने। किसका? एसी का बिल 30 रुपया शाम ने पेमेंट करना चाहिए। गेटिंग दिस। उसके बाद ये जो पोहा वाला है कौन था? सूरज। सूरज क्या करेगा? उसका टोटल प्रोपोर्शन कॉस्टिंग कितना है? 4%। टोटल में 4% यानी 100 का 4% यानी 4 रुपया वो पोहा के लिए अगर खाता है तो एसी का बिल सिर्फ 4 रुपया उसके ऊपर आएगा। और 61% यानी यहाँ पे जो 100 रुपीज में से ज्यादा एसी का बिल 61 रुपीज कौन पेमेंट करेगा? ये 61 रुपीज ये पेमेंट करेगा, नितिन पेमेंट करेगा। इफ आई कैलकुलेट द टोटल ऑफ दिस, अभी इसका टोटल करो। किसका? ये जो बिल मैंने एलोकेट किया ना 100 रुपीज एसी का, तो उसका देखो 100 आता है क्या? इसका टोटल 100 आना चाहिए। देखो आता है क्या? 61 प्लस 4 65 प्लस 3 30 65 प्लस 30 इज इक्वल टू 95 95 प्लस 3 यानी अप्रोक्सीमेटली हमने पॉइंट छोड़ा है ना, इसलिए ये 95 यानी इसको भी 5 करेंगे, इसको 5 करेंगे, 4 यानी 4 का 5 करेंगे। एक 2-3 रुपए का फर्क था और इसको 4 का 3 का 4 करेंगे। गेटिंग दिस। So if I allocate this AC bill in this way, 4 rupees for Ram, 30 rupees for Shyam, 5 rupees for Suraj, and 61 rupees for Nitin, at that time probably they will agree. Getting this? And बार बार जब कभी वो ऐसी खाना खाने जाएंगे इसी रूप से इसी ढंग से वो क्या करेंगे? अलोकेशन करेंगे एंड ऑल विल एग्री। जिसका ज्यादा बिल है उसने ज्यादा एसी का बिल देना पड़ेगा, उसको ज्यादा बिल देना पड़ेगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट एग्री। तो ये जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। तो पहले मैंने कौन सा डायरेक्ट मटेरियल अलोकेट करते समय कौन सा क्राइटेरिया लगाया? ऑर्डर क्या है। और दूसरा क्राइटेरिया ओवरहेड अलोकेशन करते समय उसके ऑर्डर की कॉस्ट क्या है। सो बाय अप्लाइंग दिस काइंड ऑफ वेरियस कॉस्ट ड्राइवर, इसको कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। और ये इसी तरीके के कॉस्ट ड्राइवर अगर हम लोग यूज करते हैं कॉस्टिंग में, तो उस इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वी विल मेक प्रॉपर अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। तभी हम लोग अलोकेशन ठीक तरीके से कर सकते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन 1 टाइम 2 टाइम इट इज पॉसिबल, डिपार्टमेंट विल एग्री। अगर ये आपका रेगुलर धंधा है, रेगुलर एक्टिविटी है, तो ये these people will not agree for this because some people may get injustice. Getting this? So if you have common kind of expenses, at that time it should be distributed on the basis of certain cost drivers. जैसे कि मैंने यूज किया, यहाँ पे मैंने यूज किया था कि ऑर्डर क्या है, दैट इज वन कैटेगरी, और दूसरा कॉस्ट क्या है। सो दिस ऑर्डर एंड कॉस्ट, these are the two cost drivers I have used to distribute 100 rupees overhead among the various departments, and this is called as a apportionment of the overheads. इसको क्या बोलते हैं? apportionment बोलते हैं। Getting this? So in apportionment, if it is one time, at that time you can make equally apportionment. If it is not one time, if it is regular duty, at that time what we will have to do, we have to use certain criteria to allocate this cost. तो एबीसी कॉस्टिंग में हम लोगों को क्या सीखना है? यही हम लोगों को सीखना है। So whenever you are going to allocate these overheads to the various departments, whenever you are going to allocate these common expenses to the departments, at that time we should go very specific, very accurate.
Otherwise, one department will suffer the loss every time. And ये राम अगर हर बार एसी का बिल दूसरे से उसके खाने से अगर ज्यादा देता है तो राम क्या बोलेगा? 8 दिन में राम बोलेगा मुझे आपके साथ नहीं आना है होटल. I will not continue my business with you. Getting this? सूरज भी बोलेगा कि मुझे नहीं, मेरा तो पोहा फिक्स है, मैं पोहा ही खाऊंगा, जब मैं आऊंगा होटल को मैं पोहा ही खाऊंगा. राम भी बोलेगा मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं वेज भी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ चाय का ऑर्डर दे दूंगा. अगर हर टाइम आप अगर मेरे ऊपर ज्यादा पैसा एक्सपेंसेस डालते हैं तो वी विल नॉट कम विथ यू. श्याम एंड नितिन, वी विल सॉरी फॉर इट. गेटिंग दिस? राम एंड सूरज कंटिन्यू नहीं बिजनेस करेंगे, दो दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड, but they will not continue. The same thing happens in the organization. Take an example of Mahindra organization. Mahindra have various lines in one organization. एक फैक्ट्री में अलग अलग लाइन्स होते हैं. क्रैंकशाफ्ट का अलग लाइन होता है, असेंबली का अलग लाइन होता है, इंजन का अलग लाइन रहेगा. लेकिन जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं उसके, वो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या हो जाएगा? एक डिपार्टमेंट लॉस में जाएगा और एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट में जाएगा. This should not happen in the organization. That's why you have to allocate common expenses by using certain cost drivers. किसका कितना खर्चा है, किसका कितना वॉल्यूम है, किसका कितना इन्वेंट्री है, किसका कितना लेबर, किसके कितने लेबर कहाँ पे काम करते हैं, उसका फ्लोर एरिया कितना है, ये सारे कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं. गेटिंग दिस? किसने कितना इलेक्ट्रिसिटी रन किया, किसने कितना प्रोडक्शन किया, किसने कितना रॉ मटेरियल परचेस किया था, किसके डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें देख के हम लोग क्या करेंगे? कैंटीन का बिल रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहेगा, वाटर का बिल रहेगा, सिक्योरिटी का बिल रहेगा, उसके बाद इंस्पेक्शन का बिल रहेगा. ये सारा जो बिल है ये इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसको सारे को बोलते हैं हम लोग ओवरहेड्स. ये ओवरहेड्स अलोकेट करते समय वी शुड नॉट गो इक्वली, वी हैव टू फाइंड सर्टेन कॉस्ट ड्राइवर्स. कैसे है? हम लोगों ने वॉल्यूम है, सेल है, फ्लोर एरिया है, नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे, लोग कितने काम करते हैं, रॉ मटेरियल कितने का है, उसका टर्नओवर कितना, ये सारे कॉस्ट ड्राइवर्स देख के हम लोगों को प्रॉपरली एक्यूरेटली कॉस्ट अलोकेशंस करना पड़ेगा. एंड टू मेक दिस कॉस्ट अलोकेशन, traditional costing techniques are also there as well as some modern costing techniques are there, that is like ABC. तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक्स कब यूज करते हैं? इफ यू हैव ओनली वन और टू लाइंस, एट दैट टाइम वी कैन यूज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक्स. बट इन केस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी देयर आर नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ सर्विसेज दे आर डीलिंग विथ. मल्टीनेशनल कंपनी 4, 5, 15 लाइन एट ए टाइम चलते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल, टाटा मोटर्स. फैक्ट्रीज इन 100 एकर्स और 200 एकर्स और 1000 एकर्स. तो कितने लाइन रहते हैं? टेम्पो का अलग, सुमो का अलग, कार का अलग, ट्रक का अलग. गेटिंग दिस? तो हर एक लाइन के कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं. तो ये कॉमन एक्सपेंसेस कैसे एलोकेट करें? टेम्पो के ऊपर, कार के ऊपर, उसके बाद ट्रक के ऊपर और कुछ एक्सपेंसेस है, कैसे एलोकेट करेंगे? उसके लिए प्रॉपर एलोकेशन सिस्टम कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे. So if you have multiple lines, more number of lines, at that time this traditional costing technique will be useless. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करने के बाद क्या हो जाएगा? इनजस्टिस कोई भी डिपार्टमेंट के ऊपर होगा, बिकॉज कॉस्ट ड्राइवर्स आर विल बी वेरी लिमिटेड. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि वी विल फाइंड द मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स, accurate cost drivers, and by finding this accurate cost drivers we will allocate this overhead on the particular department so that injustice will not happen there. तो वहां पे injustice नहीं होगा, और injustice हुआ, improper allocation हो गया तो एक डिपार्टमेंट का लॉस होगा और एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हो जाएगा. and this is not good for overall growth of organization. Getting this? That's why what you have to do, you have to make the proper allocation of the expenses, proper allocation of indirect expenses. And to make the proper and exact allocation of indirect expenses, activity based costing techniques is more useful. जहां पे मटेरियल के कॉस्ट से ज्यादा ओवरहेड के कॉस्ट होते हैं. कैंटीन का बिल आया
20 रुपया और एसी का बिल आया 25 रुपया, मीन्स व्हाट, ओवरहेड्स आर मोर देन योर मटेरियल. At that time, traditional costing technique will be not useful. At that time, you have to go very specific. And to go very specific is nothing but activity based costing. जो very specific minute level पे हम लोग costing करना जरूरी है. Because your services are more, your expenses are very much. At that time, I have to go by activity based costing. Clear about this importance and background of activity based costing, student? Yes, sir. हाँ, ये बैकग्राउंड है. जब तक ये बैकग्राउंड नहीं समझता तो बाकी सारा आपके ऊपर से जाएगा. ओके, 1 मिनट. So this was the background of activity और costing technique. अभी ट्रेडिशनल टेक्निक तो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, हम लोग मॉडर्न टेक्निक में क्यों जाए? तो ट्रेडिशनल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू द मॉडर्न कॉस्ट टेक्निक. आपको ये तो ध्यान में आ गया क्या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स, फर्क क्या है दोनों में? Yes, sir. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट होते हैं. डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग डायरेक्टली अलोकेट कर सकते हैं, विच वी कैन आइडेंटिफाई वेरी फास्ट. कौन से डिपार्टमेंट का मटेरियल का कॉस्ट कितना है, आई हैव आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ परचेस ऑर्डर. एंड स्टोर डिपार्टमेंट मुझे आइडेंटिफाई करके दे दिया कि ये जो मटेरियल है ये इस लाइन के लिए गया है, ये मटेरियल इस लाइन के गए, ये मटेरियल ये लाइन के गया है. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर ऑर्डर्स and store purchases, I can bifurcate this cost. मटेरियल का कॉस्ट, एक्सपेंसेस, इस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. एचआर मैनेजर वाला बोलेगा कि 50 एम्प्लॉय में से 10 लोग स्कॉर्पियो लाइन पे काम कर रहे हैं, 20 लोग बोलेरो लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी वाले लाइन ट्रैक्टर डिवीजन के ऊपर काम कर रहे हैं. जो एचआर डिपार्टमेंट वाला मुझे कॉस्ट बाइफरकेट करके दे देगा, वो भी पॉसिबल है मुझे अलोकेट करने के लिए. लेकिन कैंटीन का एक्सपेंसेस का क्या करने का, सिक्योरिटी का क्या करने का, जनरल मैनेजर का सैलरी का क्या करने का, इंस्पेक्शन वाला जो चारों लाइन एक ही डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाला क्या करने का, वो ये जो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं इसको ओवरहेड्स बोलते हैं. और ये प्रॉपर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स अगर नहीं हुआ तो कंपनी शुड गो इनटू लॉस. एक डिपार्टमेंट हर रोज सफर करेगा और वो भी ज्यादा दिन सफर नहीं करेगा. वो बोलेगा नहीं, हम लोग को मैं प्रोडक्शन सिस्टम ही बंद कर देता क्योंकि मेरा कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रहा है, बिकॉज माय एक्सपेंसेस आर मोर देन माय एक्चुअल कॉस्ट. आप जो एक्सपेंसेस मेरे ऊपर डाल रहे हैं ना, ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट से भी आप ज्यादा डाल रहे हैं. सो दिस शुड नॉट हैपन. इसलिए देयर आर सम ट्रेडिशनल मेथड्स एज वेल एज स्टैंडर्ड मेथड. तो ट्रेडिशनल मेथड कब हम लोग यूज करेंगे? सपोज दैट वी हैव ओनली 2 लाइंस. एट दैट टाइम इट इज इजी टू अस टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स. मेरे पास अगर 2 ही लाइन है तो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल. लेकिन इफ आई एम कंटिन्यूइंग विथ 20 लाइंस, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ महिंद्रा लाइन और महिंद्रा कंपनी और टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, नंबर ऑफ लाइंस आर वेरी मच. So in that case, it will be very complex to allocate this overheads. So at that time, we have to go very specific, and by going the very specific is nothing but activity-based costing. Now goes through this slide. Traditional cost management technique क्या था? ये यहाँ पे मैंने दिया है. Just read this slide. Then we will discuss about this.
Now see here what we used to do here. ट्रेडिशनल टेक्निक हम लोग कब यूज करते हैं? वी हैव ओनली 2 प्रोडक्ट्स और 2 लाइंस, एट दैट टाइम वी कैन गो बाय ट्रेडिशनल टेक्निक। तो ट्रेडिशनल टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं? वी लार्जली फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। तो इट इन्वॉल्व्स अलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स टू द प्रोडक्शन। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक्स में हम लोग क्या करेंगे? allocate the overhead and material cost to the production department। जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस है वो हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहले मटेरियल का तो करेंगे, मटेरियल का डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट लाइन के ऊपर जाएगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट जो होते हैं उसके एक्सपेंसेस को हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। और वो ओवरहेड्स हम लोग वंस अगेन वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं? ओवरहेड्स, जो सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स होते हैं वो हम लोग वंस अगेन वी विल अलोकेट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो एग्जिस्टेंस है, सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट का जो एग्जिस्टेंस है किसके लिए है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। जितने भी मेरे लाइन है उसके ऊपर हम लोग डाल देंगे। ओके, at that time while allocating these expenses of the service departments to the production department we will decide certain standards। हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉस्ट अकाउंटेंट has, जो कॉमन कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट यानी द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस कॉस्ट, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द प्रोडक्ट। जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बैठा हुआ आदमी है कॉस्ट अकाउंटेंट, ही इज टेकिंग केयर, ही इज ऑब्जर्विंग दिस थिंग। वो क्या करेगा? ही विल डिसाइड स्टैंडर्ड प्रोसेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो स्टैंडर्ड बजट तैयार करेगा। और स्टैंडर्ड कॉस्ट हर एक का, अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा आया 500 रुपीज, तो 500 में से स्कॉर्पियो के ऊपर कितना डालना है और बोलेरो के ऊपर कितना डालना है, वो कौन डिसाइड करेगा? बाय मेकिंग क्लियर स्टडी ऑफ दिस एक्टिविटीज ही विल गिव अ स्टैंडर्ड। वो क्या करेगा? एक स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा और स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग डालेंगे। By comparing budgeted and standard cost, we can analyze the differences। We will try to understand the differences between budgeted कितना था और standard कितना था। Now on the basis of this, in traditional costing techniques we can take the corrective action would be taken to ensure future outcomes are within the budgeted outcomes or not। तो उसके हिसाब से, बजट से के हिसाब से या स्टैंडर्ड के हिसाब से whether we should continue or not, he will make the analysis, because my expenses should not be more than my cost which I bear, which I have paid। तो इसके हिसाब से हर एक एनालिस्ट ने जाना चाहिए। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एड्स एवरेज ओवरहेड रेट। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या आता है? एवरेज ओवरहेड रेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एंड वी विल टू द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे? एवरेज ओवरहेड रेट कैलकुलेट करके हम लोग डाल सकते हैं in manufacturing of products। Now this overhead rate gets applied on the basis of cost driver। अभी ये जो overhead rate हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो cost driver के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। कौन से cost driver हम लोग यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेबर आवर्स, कितने लेबर आवर्स ने काम किया है, कितने लेबर्स में काम किया है, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन किया, कितने ऑर्डर दे दिए हैं, कितने वॉल्यूम में प्रोडक्शन किया। सो दीज आर द कॉस्ट ड्राइवर्स। By identifying the cost drivers, we will allocate this amount to the respective department। So this is the about traditional costing। Now to allocate cost is fairly as possible the true cost of the products। जितना भी उसका खर्चा है उतना ही उसको cost allocation करना है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग में फर्क क्या है? Functions are same, but traditional cost is used for in case of 2 or 3 activities only। अगर number of activities बढ़ते हैं, at that time we should not go by traditional costing, we have to go by activity based costing। लेकिन फंक्शन दोनों का एक ही है। क्या फंक्शन है? ओवरहेड के खर्चे हम लोग प्रोडक्शन लाइन के ऊपर डालना है, दोनों में भी वही काम करते हैं। लेकिन in case of traditional costing techniques we have 2-3 cost drivers। लेकिन एबीसी कॉस्टिंग टेक्निक में मेरे पास कॉस्ट ड्राइवर्स विल बी नंबर ऑफ 15-20 कॉस्ट ड्राइवर्स रहेंगे।
more accurate or more specific cost drivers I will identify in activity based costing. तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या, टू अलोकेट द कॉस्ट फेयरली एज पॉसिबल द ट्रू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसका कॉस्टिंग कितना है उतना ही उसके ऊपर हम लोग खर्चा डालेंगे. when management has come when management has more accurate cost, better decision should be made. अगर मैनेजमेंट के पास एक्यूरेट कॉस्टिंग का हिस्ट्री रहेगा तो इट्स मोर इजी टू अलोकेट द कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर इजीएस्ट टू ट्रेस थ्रू. ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये जो दो कॉस्ट ड्राइवर है, वो देख के हम लोगों ने क्या किया, एसी का बिल कैसे लगाया, किसने कितना खाया था, यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी थी, ये यूज करके हम लोगों ने एसी का बिल लगाया था. इन द सेम मैनर हियर आल्सो मटेरियल कॉस्ट कितना किसका कितना है, परचेसिंग कॉस्ट कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये कॉस्ट देख के हम लोग ये ओवरहेड का एक्सपेंसेस हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. Now see here, direct material and direct labor costs are easiest traced through material requisition and payroll timesheets. डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अलोकेट करेंगे, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप देख के हम लोग अलोकेट कर सकते हैं. और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसी है, पेरोल कितना है, सैलरी कितना है, हर एक एक्सपेंसेस का, हर एक डिपार्टमेंट का, वो देख के हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड अलोकेशन कर सकते हैं इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक्स. 1 minute. No, just see the diagram of traditional costing techniques. ये होता है कैसे. To this lecture, let us discuss about traditional product costing, and to the next lecture we will go for activity based. Just see here and just read this slide. See here. This is the diagram of traditional costing techniques. How it happens, just see whatever cost is there. So that cost is consumed by which department, that we can identify. We will identify the departments in traditional costing techniques. And whenever you are going to allocate this cost to the particular department, पहले cost कितनी है और कितने departments है और कितने products है. And when you go to allocate this cost to the products, at that time what I will do, so allocation will be on the basis of costs are allocated to the product based on assumed linkage or convenient alternatives such as direct labor hours or direct materials or number of employees working there. So we will use certain cost drivers while allocating cost to the products. वही प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कितने लोगों ने काम किया है, कितना मटेरियल यूज किया है, या कितना फ्लोर एरिया है, कितना कैपेसिटी है, उस ये जो हम लोग क्राइटेरिया यूज करेंगे उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स. By making the careful analysis of cost drivers, I can use one cost driver to this product line while distributing this cost to the various departments. So this is how traditional costing techniques happens. Now in the traditional costing techniques, it focus on product in the costing process. हम लोग product के ऊपर focus करें. Second, costs are traced to the product with assumption of consuming the resources in proportion to the volume produced. कितना मैन्युफैक्चरिंग किया उसके हिसाब से रिलेशंस हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. अगर इतना मैन्युफैक्चरिंग रहेगा तो ये इसका कॉस्ट कितना है, प्रोपोर्शन कितना रह सकता है, दैट आई कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ योर प्रोडक्शन, कितना मैन्युफैक्चरिंग किया है. So this is one
criteria I can use. So these volume drivers fails to account for product diversity. Agar if we have number of products, diversified products are there, at that time we can't use the volume as a cost driver, because your product is having various diversity, number of diversities are there, various models are there, various lines are there, various models are there into one product. At that time volume drivers will fail. Okay, the volume drivers fails to account for product diversity in the form of size or complexity. There is not a direct relationship between production volume and cost conversion. ऐसा नहीं हो सकता है. वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ज्यादा प्रॉफिट है. Getting this? So you can, on the basis of how many units you have produced every time, you should not allocate the cost on the basis of your volume. Probably departmental head will not agree for it. Head of that particular unit will not agree for it. So at that time traditional costing will fail. At that time traditional costing will fail. Okay. लेकिन अगर प्रोडक्ट में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, number of product lines are only 1 or 2 or 3 up to this, and cost drivers are very easy to understand and identify. अगर ये है तो हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक से जा सकते हैं. अगर ये पॉसिबल नहीं है, if it increases the complexity into your product lines as well as volumes, at that time I should have to find another alternatives. That is the modern technique, that is the activity based costing. Okay, students, we have finished our time. So to this lecture we have just saw the background of traditional costing techniques and activity based costing. Once you understand this background, then there is nothing difficult in the understanding the process. Okay, so let us let's stop here. We have finished time. Remaining part of this session we will continue tomorrow. Okay, thank you so much. Thank you, sir.